اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس اجلاس کے معزز صدر صوبائی جمعیت الحدیث، ضلعی جمعیت الحدیث، جمعیت الحدیث اربن اور مقامی جمعیت کے تمام ہی ذمہ داران، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان خصوصی، شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے جو موضوع ذمہ داران اجلاس نے دیا ہے وہ موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. میں نے اپنے موضوع کو شروع کرنے کے لیے قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف سورت پڑھی ہے جو مسلمانوں کے تقریباً بچے کو یاد رہتی ہے، مگر اس صورت کے معنی، مفاہیم اور مضامین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کامیاب کون ہے اس دنیا میں؟ کامیابی و ناکامی کا حقیقی معیار کیا ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کامیاب انسانوں کی پہچان یہ ہے الا الذین آمنوا، وہ ایک تو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، دوسروں کو حق کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور اس راستے میں آنے والی مشکلات پہ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں. حضرات، یہ جو تیسری بات اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں بیان فرمائی، تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، یہی میرا موضوع ہے. تواصی بالحق کو ہی دوسرے الفاظ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، یعنی دوسروں کو بھلائی کا حکم دینا اور دوسروں کو برائی سے روکنا. حضرات دیکھیے، کتاب و سنت کا اولین اور پہلا مطالبہ مجھ سے اور آپ سے یہ ہے کہ پہلے ہم خود نیک بنیں، اور جب ہم نیک بن جائیں تو یہ ناکافی ہے کہ ہم نیک بن گئے تو دنیا کدھر جا رہی ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. حقیقی نیکی یہ ہے جب تم نیک بن گئے ہو تو اب تمہیں دوسروں کو نیک بنانے کی فکر کرنی چاہیے. تم اگر برائیوں سے بچ چکے ہو اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی، معصیتوں سے بچ گئے، شراب و کباب کی مجلسوں سے بچ گئے، غلط صحبتوں سے بچ گئے، غلط ماحول سے بچ گئے، برائیوں سے بچ گئے، اب تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے جو لوگ ان برائیوں میں ملوث ہیں انہیں میں کس طرح سے بچاؤں. خود نیک بن جانا اسلام کی نظر میں ناکافی ہے، خود نیک بننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نیک بنانے کی فکر یہ ازحد ضروری ہے. اور حضرات، اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے اہل ایمان کی بنیادی صفت قرار دیا، فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں،
ہیں, مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی سہیلیاں ہیں. ان کے آپسی تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف, وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر, ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں. پتہ چلا مومنوں کے تعلقات کی بنیاد امر بالمعروف ہونا چاہیے. ہماری اور آپ کی دوستی کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہونا چاہیے. ہم محض اس لیے دوست ہیں کہ ہم پڑوسی ہیں, ہم محض اس لیے دوست ہیں کہ بزنس پارٹنر ہیں, ہم محض اس لیے دوست ہیں کہ تعلیمی سفر کے ساتھی ہیں, ہم محض اس لیے دوست ہیں, اسکول میٹ ہیں یا کالج میں ہم نے ایک ساتھ زندگی گزاری ہے. ان بنیادوں پہ اگر ہمارے تعلقات ہوں, ان بنیادوں پہ اگر ہماری دوستی ہو, یہ دوستی للہ نہیں ہے, اور ایسے تعلقات اللہ کو ہم سے مطلوب بھی نہیں ہیں. اللہ چاہتا ہے ہماری دوستی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر ہو. میں آپ کا ساتھی ہوں, آپ میرے ساتھی ہیں. میں آپ کے اندر کوئی برائی دیکھوں, میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو بتاؤں, اور آپ میرے اندر کوئی برائی دیکھیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے بتائیں. مومنوں کے باہمی تعلقات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پہ ہوا کرتے ہیں. کیا کہیں, اس وقت ماحول کچھ ایسا ہے, صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اگر آپ اس کے اندر پائی جانے والی برائی بتا دیں, آپ کے اندر یہ کمی ہے, آپ کے اندر یہ کوتاہی ہے, بگڑ جاتا ہے, اور وہاں سے ہماری دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے, یہ ضمیر کی موت کی علامت ہے. حضرات, امت محمدیہ, اللہ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا, ساری امتوں میں افضل امت قرار دیا, اور جانتے ہیں کہ اس امت کی فضیلت کی وجہ اور بنیاد کیا ہے؟ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دنیا کی قوموں میں اے امت محمدیہ, تمہارا مقام ہے کہ تم افضل ترین امت ہو, افضل ترین قوم ہو, اور اس لیے افضل ہو کہ دنیا میں سب سے زیادہ بھلائی کا حکم تم دیتے ہو, دنیا میں سب سے زیادہ برائی سے تم روکتے ہو. پتہ چلا ہم افضل ترین امت اس وقت کہلائیں گے جب امت کا اجتماعی کردار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہو. اگر صورتحال ایسی ہو جیسی آج ہے کہ دور دور تک ہزاروں کے مجمع میں کوئی یکا دکا نظر آئے بھلائیوں کا حکم دینے والا, برائی سے روکنے والا, تو ایسی صورت میں یہ امت افضل الامم کہلا نہیں سکتی, سب سے بہترین امت کہلا نہیں سکتی ہے. اس امت کے اجتماعی کردار میں یہ ہونا چاہیے, اس امت کی صفوں میں جا بجا وہ افراد نظر آئیں جنہیں سوسائٹی میں معروفات کو پھیلانے, بھلائیوں کو عام کرنے اور برائی سے روکنے کی فکر ہو. حضرات, اسلامی حکومت, اسلامی خلافت, جہاں کہیں اسلامی حکومت قائم ہو, قرآن کہتا ہے اسلامی حکومت کی اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام حکومتی سطح پر ہو. دیکھیے, سعودی حکومت ہے, سعودی عرب میں ایک شرعی پولیس ہے جسے کہتے ہیں ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. محکمہ پولیس تو مستقل ہے, محکمہ پولیس کا ہی ایک شعبہ ہے, شرعی پولیس اسے کہتے ہیں, جس میں ہر پولیس آپ کو داڑھی والا ملے گا, ڈریس تو پولیس کا ہی ہوگا لیکن اس کی داڑھی وغیرہ ہوگی. یہ وہی ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر جن کی ذمہ داری ہے سوسائٹی میں پائی جانے والی خرابیوں پہ نظر رکھنا, اقامت صلاح کا اہتمام کرنا. جب جیسے ہی اذان ہوگی, ہیئت الامر کی شرعی پولیس سڑکوں سے گزرے گی, الصلاۃ الصلاۃ کا اعلان کرتی ہوئی, دکانوں کو بند کراتی ہوئی. یہ اور بات ہے کہ ماضی کی طرح آج گرچہ اتنا متحرک نہیں ہے یہ ادارہ, لیکن یہ جب سے اسلامی حکومت اور خلافت کا سلسلہ چلا ہے, حکومتی سطح پر ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ باقاعدہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام ہوتا رہا ہے. کہنے والوں نے یہاں تک کہا اگر اسلام کا کوئی چھٹا رکن ہو سکتا, اسلام کے 5 رکن ہیں, اسلام کا اگر کوئی چھٹا رکن ہو سکتا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اللہ چھٹا رکن بناتا, اس لیے کہ شریعت میں اس فریضے کی اتنی اہمیت آئی ہے. اور حضرات, ہمارے اسلاف آج ہماری صورتحال یہ, 1000 برائیاں صبح سے شام تک دیکھتے ہیں, 1000 خرابیاں اپنوں میں دیکھتے ہیں, بولنے کی توفیق نہیں ہوتی, بتانے کی توفیق نہیں ہوتی, سمجھانے کی توفیق نہیں ہوتی, نصیحت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. ماں باپ اولاد کے اندر دیکھتے ہیں,
माँ बाप औलाद के अंदर खराबी देखते हैं, बताते नहीं हैं। बच्चा हमारे सामने, हमारे घर में, हमारी निगाहों के सामने बैठ के टेलीविजन पे बरहना औरतों को देखता है, ऐसे इश्तिहारात देखता है जिसमें बरहना औरतें, नाचती हुई औरतें नजर आती हैं। हम उसके साथ गपशप करते हुए बैठे रहते हैं। हमें बच्चों की फिक्र तब लाहिक होती है जब वो बागी बनते हैं, बगावत पे उतर आते हैं, हमारे नाफरमान होते हैं और हमारी इज्जत को खाक में मिलाते हैं। तब हम आंख खोलते हैं और तब हमें फिक्र होती है। फिक्र इसलिए नहीं कि वो बिगड़ गया, इसलिए कि हमारी इज्जत दांव पे लगी है। हमारी इज्जत दांव पे लगी है, इसलिए अब हम सोचते हैं जिस वक्त हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने बैठ के टेलीविजन देखा करता था, जिस वक्त हमारा बच्चा हमारे सामने गाने सुना करता था, जिस वक्त हमारा बच्चा हमारे सामने गलत दोस्तों अहबाब के साथ मिला करता था, हमने उसे कभी रोका नहीं। हजरात, ये अफसोस है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो जज्बा दिलों में होना चाहिए, आज ये जज्बा पूरी तरह से मफकूद है। सहाबा को देखो कैसे मुश्किल औकात में अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, क्या सूरत हाल है, मौका कैसा है, छुरा घूम दिया गया है। अबू लुलू फेरोज अल मजूसी ने आइन फजर की नमाज में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के पेट में छुरा घूम दिया है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को मस्जिद से उठाकर घर लाया गया है, दूध पिलाया जा रहा है और वो पिया हुआ दूध जो है यहाँ जो सुराख पड़ा है, सुराख से निकल जा रहा है। मतलब ये है कि अब अमीरुल मोमिनीन चंद लम्हों के मेहमान हैं, अब उनकी चंद सांसें बाकी रह गई हैं, जिंदगी के चंद मिनट बाकी रह गए हैं। मदीने में खबर मशहूर हो गई, लोग आने लगे, तसल्ली देने लगे। हजरत उमर को आकर इयादत करके जाने वालों में सिलसिलावार लोग आ रहे हैं, इयादत करके जा रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु जिंदगी की आखिरी सांसें, जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। इयादत करके जाने वालों में हजरत उमर ने देखा कि एक शख्स जा रहा है जिसका पैजामा टखने से नीचे लटक रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर जांकुनी का आलम है, सकरात जैसी कैफियत कहो, छुरा घोम दिया गया है, पेट में सुराख पड़ चुका है, आखिरी सांसें चल रही हैं। इयादत करके जाने वालों में देखते हैं कि एक शख्स का पैजामा टखने से नीचे लटक रहा है। बुलाते हैं, कहा कि इधर आओ, इधर आओ। इरफा इजारक, इरफा इजारक फइन्नहु अनका लिसौबिक व अतका लिरब्बिक। कहा कि मेरे भाई अपना पैजामा टखने से ऊपर कर लो, तुम्हारा कपड़ा भी पाक साफ रहेगा और रब से डरने के तकाजे भी पूरे होंगे, तकवे के तकाजे भी पूरे होंगे। अल्लाह की कसम, अमर बिल मारूफ ये कैसी जिम्मेदारी है, इसको समझना हो तो जिंदगी में इस वाक़े को मत भूलो, जिंदगी में इस वाक़े को ना भूलो। हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कैसी मुश्किल घड़ी में, कैसे मुश्किल औकात में, जिंदगी की आखिरी सांसों में भी इसको याद रखते हैं। बड़े बड़े हुक्मरान हो, ताजदार हो, गवर्नर हो, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हक बात बताने से चूकते ना थे, उनकी बुराई पे नकीर करने से चूकते ना थे। मरवान बिन हकम मदीने का गवर्नर है, ईदगाह है, ईद की नमाज हो रही है, गवर्नर ने क्या किया, पहले खुतबा दे रहा है, पहला खुतबा दे रहा है ईद का, और मजमे में सहाबा मौजूद हैं, ताबीन मौजूद हैं। पहले खुतबा दे रहा हो, बाद में नमाज पढ़ा रहा है। प्यारे नबी ने पहले नमाज पढ़ाई, बाद में खुतबा दिया। हजारों का मजमुआ है, पूरा मदीना मौजूद है, पहले खुतबा दे रहा, बाद में नमाज। सहाबी उठे, हजरत अबू मसूद रजी अल्लाह अन्हु उठकर मजमे आम में मरवान बिन हकम से मुखातब होके कहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं, प्यारे नबी की सुन्नत की खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं। प्यारे नबी ने नमाज पहले पढ़ी थी और बाद में खुतबा दिया था। उन्होंने जवाब दिया कि मैं खुतबा पहले इसलिए दे रहा हूँ कि नमाज पहले पढ़ा देता हूँ तो लोग खुतबा सुनते नहीं चले जाते हैं। बहरहाल वो उनकी तौजी थी, जाहिर बात है सुन्नत की मुखालफत है। अबू मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने बर्रे मजमे आम में टोक दिया। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु ने उस वक्त फरमाया कि रहे ये, इन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से कोई बुरा किसी के सामने बुराई होते हुए
हुए देखे वो रोक दे। वो हदीस उन्होंने मशहूर हदीस सुनाई हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने। मेरे भाई सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बुराई से, मुनकरात से, बिदआत से, खुराफात से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। कभी उन्होंने मुफाहमत नहीं की, इस्लाह की कोशिश की। जहां रोकना था रोका, जहां टोकना था टोका, जहां बात बतानी थी बात बताई, और जहां बात वजाहत तलब थी उसकी वजाहत की। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के सिलसिले में ये हकीमाना तालीम भी दी है। देखिए बसा औकात ऐसा होता है कि बुराई हो रही है मगर हम उस पोजीशन में नहीं होते कि हम रोक सकें। हमारी पोजीशन वो नहीं होती कि हम रोक सकें, या हमारी पहुंच वहां तक नहीं हो सकती कि हम रोक सकें। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हकीमाना तालीम दी। आपने कहा इनकारे मुनकर के 3 मरातिब हैं। बुराई को बुराई समझने और इनकारे मुनकर के 3 मरहले बताए। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। कहा कि पहली कोशिश तो हाथ से रोकने की, गलत काम हो रहा है पहली कोशिश हाथ से रोकने की। और ये किसके लिए? माँ बाप हैं, औलाद को हाथ से रोक सकते हैं। शोहर है, बीवी को हाथ से रोक सकता है। हर किसी के लिए नहीं, हर किसी के लिए नहीं। आप बोलें ये मंदिर है मेरे सामने जो है गलत काम हो रहा है, जाके बुत को तोड़ूंगा मैं हिंदुस्तान में रहकर? बात समझ में आ रही है? इसलिए अहले इल्म ने कहा कि इनकारे मुनकर जो बिल यद होना चाहिए, हाथ से होना चाहिए। कहा कि हाथ से इनकारे मुनकर किसके लिए है? कहा जो इख्तियार रखता हो, इख्तियार रखता हो। सोसाइटी में आपका असर और रसूख है, आपका सियासी वजन है, गांव में आपका मुकाम है, ये गलत काम हो रहा है, हाँ आप हाथ से आगे बढ़कर रोक सकते हैं, हाथ से इस बुराई को खत्म कर सकते हैं। और अगर आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि हाथ से बुराई को रोक सकें, का बिल लिसान, जबान से नसीहत कर दो, उन्हें बता दो कि ये गलत हो रहा है, तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, इत्माम हुज्जत। और अगर सूरत हाल ऐसी है ना हाथ से रोक सकते हो ना जबान से बता सकते हो, ये तो करना ही है कि दिल से बुरा जानो कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, अपने दिल में इस अमल को बुरा समझो। प्यारे नबी ने कहा कि अगर दिल में बुराई को बुराई समझने का एहसास भी ना रहे, वलैसा वराअ ज़ालिका हब्बतु खर्दल मिनल ईमान, दिल से बुराई को बुराई अगर ना समझें तो समझो कि तुम्हारे दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। लेकिन मेरे भाई 2 अहम बातें याद रखना। आमतौर पे देखो हमारे पास नौजवान बड़े जज्बाती होते हैं, जोशीले होते हैं, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर और दावत व तबलीग की कोशिश भी करते हैं, नतीजा नहीं निकलता या नतीजा उल्टा निकलता है, मायूस होते हैं। 2 बातें खासतौर पे याद रखना इस सिलसिले में। पहली बात यह है अहले इल्म ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के सिलसिले में ये उसूल और ये कानून बताया है कि आपके सामने एक गलत काम हो रहा है, एक बुराई हो रही है, अगर आप उसे इस वक्त रोकने जाएंगे तो आपको यकीन है कि ये बुराई खत्म होने के बजाय उससे बड़ी बुराई जन्म लेगी। समझ रहे हैं? कहते हैं कि ऐसे वक्त आप बुराई से नहीं रोकेंगे, खामोश रह जाएंगे। बुराई से रोकने की सूरत में बुराई खत्म होने के बजाय उससे बड़ी बुराई अगर जन्म लेने का अंदेशा हो, आप नहीं रोकेंगे, खामोश रह जाएंगे। एक शख्स बीड़ी पी रहा है, मसलन सिगरेट पी रहा है, आपको यकीन है कि अगर मैं इसे जाके बात करूंगा, समझाऊंगा, ये इतना शरीर है कि अभी बीड़ी फेंक के बाजू शराब खाने जाएगा, शराब पी के दिखाएगा। समझ में आप? अगर आपको यकीन है कहा कि बुराई अगर हमारे कहने से खत्म होने के बजाय उससे बड़ी बुराई जन्म लेने का अंदेशा हो तो फिर आप रोकेंगे नहीं। इसीलिए कहते हैं अमर बिल मारूफ करते हुए नही अनिल मुनकर करते हुए ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कहीं कोई बड़ा फितना ना रोनुमा हो जाए, एक गलत काम को रोकने की कोशिश में कहीं कत्ले आम ना हो जाए, ये बात मद्देनजर रखना बहुत जरूरी। देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका अरमान था, आपकी ख्वाहिश थी, खाने काबा जो है ना, आज आप देखो खाने काबा का दरवाजा काफी ऊंचाई पे, इंसान खड़ा होकर हाथ ऊंचा करे तब उसकी दहलीज मिलती है, जिसे मुल्तजम कहा जाता है। प्यारे नबी के जमाने में भी खाने काबा का दरवाजा वहीं था, इतनी बुलंदी पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी, वो ये कि ये दरवाजा जो खाने काबा का इतनी बुलंदी पे, उसको नीचे कर दिया जाए और बिल मुकाबिल जो खाने काबा की दीवार है उसमें एक और दरवाजा बना दिया जाए। असल क्या था, जमाने जाहिलियत में
ये बाज़ लोगों की चौधराहट थी, हुकूमत थी कि खाना काबा के अंदर वही शख्स दाखिल हो जिसे हम चाहें। नीचे दरवाज़ा बना देंगे तो हर कोई दाखिल हो जाएगा, ऊपर बना दो, चाबी अपने पास रखो, तुम्हारी मर्जी से जिसको चाहे दाखिले की इजाज़त दो और जिसको चाहे रोको। ये बाज़ लोगों की चौधराहट थी। प्यारे नबी की ख्वाहिश थी, आपकी आरजू थी, आपकी तमन्ना थी कि ये चीज खत्म हो, खाने काबा का दरवाजा नीचे आ जाए, मुकाबिल में दूसरा दरवाजा बनाया जाए ताकि हर एक को दाखिले की सआदत मिले। मगर आपने चाहकर भी ऐसा नहीं किया, ख्वाहिश के बावजूद ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपने हजरत आयशा से फरमाया कि आयशा, मुझे डर है ऐसा करने की सूरत में कोई बड़ा फितना ना हो जाए। तुम्हारी कौम के बहुत सारे लोग, कुरैश के लोग अभी अभी मुसलमान हुए हैं, अभी अभी इस्लाम में आए हैं, तो लिहाजा इनका जहन अभी पुख्ता नहीं है, मुझे फितने का डर है। एक फितना पैदा होने का अंदेशा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहने के बावजूद, हालांकि आप अगर हुक्म करते तो आपके एक इशारे पे काम हो जाता, पर देखो आपने ये तालीम दी कि अमर बिल मारूफ करते हुए, दावत व तबलीग करते हुए इस सबक को ना भूलो कि तुम्हारे बुराई को रोकने से उससे बड़ी बुराई जन्म नहीं लेनी चाहिए। वहां रोको जहां तुम्हारे रोकने से बुराई कम होने का यकीन हो या अंदेशा। और दूसरी बात, किसी को भी हम बुराई करता हुआ देखते हैं ना, सबसे पहले वो हमारी नजरों में गिर जाता है। याद रखो मेरे भाई, वो नजरों में गिर जाता है। और जब हमारी नजरों से वो गिर जाता है, जब हम उस हालत में उससे बात करते हैं, उसकी तहकीर करते हैं, उसकी तजलील करते हैं, उसकी तौहीन करते हैं, ऐसे जुमले बोलते हैं, याद रखो ऐसा नहीं होना चाहिए। बुराई करने वाला बुराई कर रहा है, उसकी बुराई से नफरत करो। उस शख्स की इस्लाह करनी है, इसलिए उससे हमदर्दी रखो। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है, एक शख्स शेख बिन बाज के पास आया, कुछ पूछने लगा, गुफ्तगू करने लगा। अभी अभी बीड़ी पी के आया था वो शख्स, हाँ बीड़ी पी के आया था। आगे शेख बिन बाज से बात कर रहा है और उसकी मुंह से बीड़ी की बदबू आ रही शेख बिन बाज को। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत से बात कर रहे हैं, उससे शफकत से बात कर रहे हैं, उसकी बात को पूरे एहतमाम से सुन रहे हैं, उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हैं और जबान से कह रहे हैं गफर अल्लाहु लक, गफर अल्लाहु लक, अल्लाह माफ करे आपको, अल्लाह माफ करे आप। हाँ, वो शख्स शर्मिंदा हो, समझ गया हो, हाँ तवज्जो भी दे रहे हैं उसकी तरफ, मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, शफकत का मामला कर रहे हैं, पूरे एहतमाम से उसकी बात को सुन रहे हैं। और मुंह से जो बीड़ी की बदबू आ रही तो कह रहे गफर अल्लाह लक, अल्लाह माफ करे तुमको, अल्लाह माफ करे। उस शख्स का कहना है, मैंने उसी मजलिस में अहद किया कि आज से मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, और शेख से मैंने वादा किया कि शेख वादा है आज के बाद इस चीज को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं उस चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। मकसद इस्लाह होती है। आप सामने वाले की तजलील करके उसकी इस्लाह नहीं कर सकते, सामने वाले की तहकीर करके उसकी इस्लाह नहीं कर सकते, और सामने वाले की तौहीन करके उसकी आप इस्लाह नहीं कर सकते। मेरे भाई, बुराई से नफरत करो जिसके पास भी और जहां भी हो, और बुराई करने वाले से हमदर्दी रखो, इसलिए कि हमें उसे सुधारना है और उसकी इस्लाह करनी है। हजरात, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, यह ऐसा फरीजा है, यह ऐसी जिम्मेदारी है कि अगर सोसाइटी और समाज में लोग इस जिम्मेदारी की अदायगी में कोताही करें और समाज में भलाई की तरफ बुलाने वाले ना रहें, बुराई से रोकने वाले ना रहें, प्यारे नबी ने अहादीस में सख्त वईदें सुनाई हैं। कुरान मजीद कहता है कि जिस समाज में खुसूसन उलमा, ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आयद होती है हम तबके उलमा पर। उलमा के अंदर अगर ये एहसास ना रहे तो अवाम के अंदर तो ये एहसास पैदा हो नहीं सकता। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उलमा पर, फिर उलमा के बाद जो भी जिम्मेदार शख्सियतें हैं उन पर। कुरान कहता है कि जहां बुराइयां हो और बुराई से रोकने वाले ना हो, वो समाज मलऊन है, उस समाज पे अल्लाह की लानतें बरसती हैं। कुरान ने कहा लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। बनु इसराइल पे अल्लाह की लानत हुई, बनु इसराइल पे लानत की बारिश हुई। किस लिए?
कानू ला यतनाहून अन मुनकरिन फअलू, इसलिए कि वो बुराई देखते थे और बुराई को रोकने वाले उस समाज में ना रहे, उनके दरमियान ना रहे। बुराई हो रही थी, देख रहे थे, और बुराई से रोकने वाले उनके दरमियान ना रहे। अल्लाह कहता है कि मलून है ऐसे लोग, मलून है ऐसा समाज, मलून है ऐसा मुआशरा, और मलून है ऐसी इज्तिमाइयत जहां बुराई करने वाले तो बेशुमार पाए जाएं और बुराई से रोकने वाला एक भी ना पाया जाए। लानतों की बारिश होती, याद रखिए। और दूसरी चीज, जिस समाज में भलाई का हुक्म देने वाले ना रहे, बुराई से रोकने वाले ना रहे, उस समाज पे तरह तरह के अजाबात आएंगे। इसलिए कुरान कहता है कि जहां अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने वाले रहेंगे, दाई रहेंगे, मुबल्लिग रहेंगे, मुस्लिह रहेंगे, उस समाज में बुराइयों के रहते हुए भी अजाब नहीं आएगा। देखो अल्लाह ने कहा वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। ये गांव है, एक बस्ती है, एक इलाका है, बुराइयां पाई जा रही, लेकिन बुराइयों के साथ साथ वहां इस्लाह की फिक्र रखने वाले लोग भी पाए जा रहे हैं, सुधारने की कोशिश करने वाले भी पाए जा रहे हैं। अल्लाह कह रहा है ऐसी बस्ती को अजाब नहीं दूंगा मैं, जहां बुराई करने वाले हैं लेकिन बुराई की सुधार की कोशिश करने वाले मेरे बंदे भी मौजूद हैं, जहां मेरे इस्लाह करने वाले बंदे हों, भलाई का हुक्म देने वाले बंदे हों, बुराई से रोकने वाले बंदे हों, ऐसी बस्ती को मैं अजाब नहीं दूंगा। वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। हाँ, अजाब कब आता है जानते हैं? बुराई हो रही है और नेक लोग देख के खामोश हैं, अजाब आएगा और नेक बुरे सब उस अजाब की जद पे आएंगे। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रजी अल्लाह अन्हा की मशहूर हदीस है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उमूमी अजाब का तज़किरा फरमाया। एक अजाब आएगा जिसकी जद पे अच्छे बुरे सब आएंगे, सब अजाब का लुक़मा बनेंगे। हजरत ज़ैनब कहती हैं मैंने पूछा अफ़नुहलकु या रसूल अल्लाह व फ़ीना सालिहून, अल्लाह के नबी हमारे दरमियान नेक लोगों के रहते हुए भी हम हलाक होंगे क्या? सालिहीन के रहते हुए हम पर अज़ाब आएगा क्या? आपने फरमाया कि नअम इज़ा कसुरल खबस, कहा कि हाँ आए ज़ैनब, जब बुराई आम हो जाए और नेक लोग साले लोग खामोशी इख्तियार कर लें, ऐसे समाज और ऐसे मुआशरे पे अल्लाह का अज़ाब आएगा। और हज़रात एक और बड़ा वबाल, एक और बड़ी आफत जिसमें हमारा समाज मुब्तला है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर न करने का एक नतीजा इस सूरत में भी जाहिर होता है, दुआ करने वालों की दुआएं कबूल नहीं होंगी, दुआएं कबूल नहीं होंगी। उम्मत के इज्तिमाई मफादात को लेकर दुआएं हो रही हैं, कहां से कहां, हमारे इलाके से लेकर हरमैन तक हो रही हैं। दुनिया में मुसलमानों की सूरत हाल क्या है, क्या क्या हो रहा है, मगर ये दुआएं क्या रंग ला रही हैं? क्या ये दुआएं असर दिखा रही हैं? हमारा ज़मीर कहता है हम मांग रहे हैं मगर दुआओं का असर हमें नजर नहीं आ रहा। क्यों? प्यारे नबी ने फरमाया कि जहां अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले खत्म हो जाए, उस मुआशरे के अफराद की दुआएं भी कबूल नहीं होगी। और सबसे बड़ी सजा तो यह है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर अगर ना करें तो समझो कि दिलों से ईमान खत्म हो गया, जमीर मर चुका, दिल मुर्दा हो चुके, ईमान की जांकुनी का माहौल होगा वहां, जहां के कोई भलाई का हुक्म देने वाला ना हो और बुराई की को जो है इससे रोकने वाला ना हो। अफसोस तो ये कि हमारे मुआशरे में एक बला तो ये कि अमर बिल मारूफ करने वाले कम हैं, और उससे बड़ी बला ये मुनकरात और मासियतें जो है ना, गुनाह के काम फख्र से करें। एक होता है कि मैं गुनाह करूं नदामत के साथ, मेरा ज़मीर मलामत कर रहा, गलत काम कर रहा हूं, शर्मिंदगी के साथ गुनाह कर रहा हूं, नदामत के साथ गुनाह कर रहा हूं, हो सकता है कि मेरी शर्मिंदगी की वजह से मेरा गुनाह रब के पास बख्शा जाए। लेकिन एक होता है कि गुनाह करूं और फख्र से करूं, बीड़ी पी रहा हूं और फख्र से पी रहा हूं लोगों के सामने जैसे कोई बड़ा काम कर रहा हूं, हाँ पैजामा टखने से नीचे लटका रहा हूं और ये समझ रहा हूं कि पैजामा झाड़ता हुआ पैजामा पहन के कोई बहुत बड़ा ऊंचा आदमी बन गया मैं, समझ रहे? गलत काम करना फख्र से करना, कर रहा हूं जुल्म मैंने किया है सामने वाले पे और फख्र कर रहा हूं कि मैंने एक तमाचा ऐसा मारा कि उसके 32 दांत भी झड़ा दिए, मैंने फख्र कर रहा हूं। याद रखो ये कोई अक्लमंदी नहीं है,
یہ دانائی نہیں ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے کہ برائی پہ فخر کیا جائے، ظلم پہ فخر کیا جائے، معصیت پہ فخر کیا جائے۔ حضرات جیسے میں نے کہا کہ برائی کو برائی سمجھ کے انسان اگر نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، یہ ندامت اس گناہ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر انسان برائی کرے اور فخر کے ساتھ کرے تو پھر یہ ضمیر کی موت ہے، یہ دل کی موت ہے، یہ ایمان کی موت ہے۔ ایسی موت سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ رب العالمین ہمارے اور آپ کے دلوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ پیدا فرمائے، آمین۔ میں اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کرتے ہوئے مقامی جمعیت شجاپور کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔